بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کب ہوا تھا اور ایسا کہاں ہوا تھا اور کون کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ عوامی، سماجی، معاشی، سیاسی حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں جو ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، آپ نے کیسے ہیں؟ بلایا۔ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ میرے ساتھ دوسری مہمان ہے ماشاءاللہ، سوشل ورکر ہے اور سماجی کاموں پر بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور اپنا مقصد بنایا ہوا سماجی کاموں کو اور بڑے اچھے انداز کے اندر گفتگو کرتی ہے۔ مختلف چینلوں پر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی تشریف فرما محترمہ سکینہ ظفر صاحبہ، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا ایسا کیوں ہے، اور آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، اس پر آپ کتنے فیصد ایگری ہیں؟ 99.99 بلکہ 110% بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ میں ایگزیجریٹ آپ کو شاید لگے تو اس لیے میں 99.99% کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے۔ ذرا نظر دوڑائیے اپنے پڑوس کے اندر اور آس پاس کے ملکوں کے اندر، وہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آزادی کیا نعمت ہے، اور جنہوں نے آزادی کی قدر نہیں کی وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ان کی مسجدیں جو ہیں وہ مندروں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ ہم آزاد ہیں، یہاں عدلیہ آزاد ہے، یا سارے ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ آپ میڈیا میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، کس نے آ کے جو ہے آپ کے اوپر قدغن لگائی؟ انلیس کہ آپ اتنے پولرائز ہو جائیں کہ جہاں آپ سوائے ایک شخصیت کی پوجا پاٹ کے میڈیا کے اوپر کسی اور کی بات نہ کریں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے یار کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں؟ ادروائز سارے آپ چینلوں پہ دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، الحمدللہ عدلیہ میں دیکھ لیں کہاں کا کس کس چیز کے بارے میں کیسز چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ادارہ رہ گیا تھا جو پولرائز نہیں تھا، وہ بھی پولرائز ہو گیا ہے، اور اب وہاں پہ بھی اب یہی کیسز چل رہے ہیں کہ اچھا جی ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ ہیں، اور بلکہ سوال بھی ہو رہے ہیں کچھ جگہ پہ کہ آپ نے ہمیں کیسے سمجھا کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن الحمدللہ یہ باتیں دیکھیں ان مملکت میں ہوتی ہیں جہاں آزادی ہوتی ہے، جہاں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں جمہوریت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک آزاد ہے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں تو اللہ کرم آپ کی بارڈر سب محفوظ ہیں اور اچھا بہترین کام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا۔ بالکل آپ اس زاویے سے جو کہہ رہے ہیں بالکل میں ایگری ہوں اس کی بات کے اوپر، لیکن کیا آزادانہ طریقے سے آزادی کے ساتھ ہر شخص اپنے حوالے سے کچھ بات کر سکتا ہے، اپنی ساری چیزوں کو آگے لا سکتا ہے؟ جس طریقے سے ہم نے الیکشن کا دیکھا، دوسری ساری چیزیں دیکھی، اس پہ کیا کہیں گے ہم؟ الحمدللہ آپ دیکھیں الیکشن بھی ٹھیک ہوئے۔ دیکھیں یہ تو اعتراض ان کو آج سے نہیں، بہت سارے لوگ جو اس وقت حزب اختلاف میں ہیں، جس کو جو ہار جاتا ہے اس کا تو یہی پاکستان میں ایک وتیرہ بن گیا کہ جی یہ ریگنگ ہوئی ہے اور مجھے جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اپنے بندے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ نئی ایک چیز نکال لی فارم 45 اور فارم 47۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر ایک یہاں عادت بن گئی ہے۔ ادروائز الحمدللہ اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ جمہوریت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ دوسری جماعتوں نے کون سے ایسا تیر مار لیا جو وہ گورنمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے 2/3 میجورٹی لے لی، وہ بھی انہوں نے بھی کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے۔ اس سے پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ ہی، عدم اعتماد کے بعد، عدم اعتماد سے پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، وہی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی کچھ ایسا ہوتا 180 ڈگری یا کوئی ریگنگ کوئی اس لیول کی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ آج قومی اتحاد کی طرح پارلیمنٹ کا گھیرا ہوا ہوتا۔ الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کے اندر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کنونس نہیں ہے، پیپل آر ناٹ ایٹ آل جسٹیفائڈ۔ ٹھیک ہے، بعض جگہ باقی دنیا ہے، یہاں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ہو اور بالکل ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ 80% 90% کیا ہوا الیکشن۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے سوشل کام کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کافی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر آگے، کن لوگوں سے آپ کی سوشل حوالے سے ملاقات ہوئی اور کن کن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا؟
بیسکلی تو ہم جو ہے لوور کلاس کو ہم مطلب کنوے کرتے ہیں میسیجز ہمارے جو بھی ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی جو میں کام کر رہی ہوں وہ اولڈ ایج ہوم پہ کر رہی ہوں اور ڈسیبل بچوں پہ کر رہی ہوں. تو میرا تو فی الحال اور یوتھ ہے, وومن امپاورمنٹ ہے, یہ تو سارے ہمارے سیمینارز کے ہیں. مگر جو جہاں تک سوشل ورک کا تعلق ہے تو وہ ڈسیبل بچے میں کہتی ہوں بہت زیادہ اس کو فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نارمل جو ہمارے یوتھ ہیں وہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں, مگر ڈسیبل جو ہے وہ خود سے کون اٹھ کون کے سے کچھ بھی. ڈسیبل بچوں کے اندر کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ ڈسیبل بچے دیکھتی ہیں؟ کیا دیکھیے ڈسیبل بچے مینٹلی ان کے ہاتھ نہیں ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, آئیز نہیں ہے, وہ سب اس کیٹیگریز میں آتے ہیں. مطلب ڈسیبل تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا جیسے وہ ہم بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, ہم تو سمجھ پا رہے ہیں نا کیا, وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے, یا وہ اٹھ نہیں پا رہے, وہ واش روم نہیں جا پا رہے, وہ بھوک لگ رہی یہ نہیں بتا پا رہے. تو یہ ڈسیبل اس میں ہی آتا ہے, فارمز میں آتا ہے. اچھا نہیں, آپ کس سے ابھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی جو بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں, کوئی ایسے جن سے آپ متاثر ہوئی, اور کیا آپ اس کاموں کے حوالے سے کیا ڈسٹربنگ ہے آپ کو, اور کس طریقے سے آپ چل رہی ہیں, کوئی مشکلیں؟ دیکھیے ہمارے سب کے پاکستان میں تو ایدی صاحب جو ہیں وہ تھے, ہم ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں, انہیں کو دیکھ کے ہم آگے سیکھے ہیں کام کرنا. اور سب سے بڑی شخصیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, تو ہم انہیں کو دیکھ کے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا اور سب کرنا. اور جہاں تک رہا آپ نے کہ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ایک کسی سے ملاقات ہوئی جس طرح آپ نے دیکھیے جو عبدالستر ایدی بچے کا ہوتے ہیں کہا, میرے جس لیے طرح ایک میں بارہا بتا چکی ہوں یہ ایک واقعہ, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے کہنے پہ, کہ میں ایک سیمینار آرگنائز کروا رہی تھی. بیسکلی وہ ایک ایونٹ تھا بڑے پیمانے پہ, وہ بڑے انجوائے کر رہے تھے اولڈ ایج ہوم میں. تو وہ ایک خاتون آئی میرے پاس اور انہوں نے بڑا انجوائے کر لیا, لاسٹ مومنٹ پہ آ کے وہ ایک دم سے ہنستے ہنستے رونے لگ گئیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے جو آپ اس طرح سے رو رہی ہیں اور کیا؟ تو کہہ رہی ہے بس سکینہ تم دعا کرو کہ میرے بچہ جو ہے اس کی سیلری جو ہے وہ 14,000 سم تھنگ ہے, اور وہ کچھ 2,000 روپے بڑھ جائے تو وہ آ کے مجھے یہاں سے لے جائے, کیونکہ رینٹ صرف 2,000 زیادہ بتا رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے تو وہ بیٹا ان کو شاید وہ ایسے بول رہا ہو, ان کا دل رکھ رہا ہو, نہیں بول رہا ہو کیونکہ وہ نہیں افورڈ کر پا رہا ہو, یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں, مگر جو ہماری انفلیشن کا عالم اس وقت بڑھ چکا ہے, روزگار نہیں ہے نوجوانوں کے پاس, یہ سچائی ہے جس سے آپ انکاری نہیں ہیں. اور آپ مجھے ایسا لگتا ہے ہم جو لیبر ڈے ابھی ہم نے منایا, تو کیا لیبرز کو آرام دیا اس دن؟ میرے بالکل نیکسٹ ڈور وہاں پہ وہ لیبر ہی کام کر رہے تھے اس دن پہ آ کے. آپ بتائیں. یہ تو دیکھیں نا لیبرز کے حوالے سے, لیبر خود اتنا پریشان ہے کہ وہ کیا کرے, وہ ایک دن تو اگر خود بھائی اپنے دیکھیں کام ہر کو بند جگہ, کرتا ہے. دیکھیں ہر کنٹری میں ان کے کچھ ایسی رقم ہوتی ہے, جیسے کووڈ آیا تھا تو ان کو فراہم کیا جا رہا تھا کہ آپ گھر بیٹھے باہر نہ نکلے, ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ساری چیزیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, راشن ہو گیا, بجلی ان کو فری ہو گئی تھی. ہمیں کیا ملا, ہم مسلمانوں کو کیا ملا, میں مسلمانوں نے کیا کیا مجھے بتائیں, سوائے اس کے کہ ایک چیز جو ماسک کی مثال دوں گی آپ کو, سینیٹائزر کی مثال دوں گی, وہ بلیک میں بکنے لگے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, رمضان آتا ہے, کوئی تہوار آ جائے ہمارا, آپ دیکھ لیں وہ چیزیں تو دگنی ہو میں نے جائیں آپ گی. آج کا موضوع یہ رکھا کہ ایسا کیوں ہے, اسی کے سوال آپ ذہن بنائیں کہ ایسا کیوں ہے. شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے یہی سوال آپ کی طرف بھی پاکستان کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ایسا کیوں ہے, اس پہ تو بات میں کرتا ہوں. لیکن ایک پچھلے پروگراموں میں میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, اور اس کے اندر آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے جب ہم کراچی کی بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی جتنے ایکٹیو آپ حافظ نعیم صاحب کو کہہ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کے پاس جماعت اسلامی کے پاس وہ لیڈر جماعت اسلامی کا اگر حافظ نعیم آ جاتا ہے تو بہت کچھ ہوتا. تو آج ماشاءاللہ حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پورے پاکستان کے امیر ہو گئے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا آپ نے اس وقت سوچ کے کہا تھا کہ اگر یہ ہو جاتا تو ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کے بہت زیادہ یہ کرپٹ جمہوری پارٹیوں کے دور کے اندر یہ جماعت اسلامی اور یہ جو کچھ پارٹیاں ہیں جو میجورٹی دیندار اور خدا خوفی والے لوگوں سے بھری پڑی ہیں, اس میں بہت اچھی لیڈرشپ ہے. لیکن چند غلط لیڈرز غلطی سے میری اپنی رائے ہے اگر آ جاتے ہیں اوپر
تو وہ کیپ بن جاتے ہیں اس پارٹی کے لیے، اس باٹل پارٹی بن کے جاتے اندر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت طریقہ کار، ہمارا بالکل بڑا پاکستان کی سب systematically سے الیکشن وغیرہ. منظم جماعت ہے، تنظیم نو ہے، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیونکہ ایک دیندار جماعت بھی ہے تو وہ دین والی ڈائمنشن جس کی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ آگے آ جاتا ہے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا کے پی کے زیادہ چھایا ہوا ہے تو شاید یہ بھی وجہ ہے. لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر اگر اوپر آ گیا اور وہ اگر اس میں کمیونیکیشن پاور نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو چیر نہیں سکتا، اس کی تقریر وہ گرما نہیں سکتا لہو کو، یا وہ بات نہیں کر سکتا جو جا کے سیدھا دل پہ لگے، تو اس کو لیڈرشپ سے ہٹ جانا چاہیے اور اس کو دوسروں کو جگہ دینی چاہیے. تو شاید اس سے تو اس لیے میں نے شروع سے مخالفت کی کہ سراج اللہ صاحب کو راستہ دینا چاہیے دوسروں کو. الحمدللہ ابھی یہ آگے ہیں حافظ نعیم صاحب. حافظ نعیم صاحب کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں، ینگ قیادت ہے، ماڈرن مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جماعت اسلامی کافی اوپر جائے گی. بالکل میرے خیال میں جانا چاہیے، لیکن ان کو بھی اس وقت کمر کس لینی چاہیے اور ان کو ایک دفعہ جو ہے نا باہر روڈ پہ بس بیٹھنا چاہیے. انہیں اب اندر کمروں میں اور اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، انہیں ہر وقت روڈ پر ہونا چاہیے. اور یہ نکلیں اگر، اور یہ اپنا ان کو اسٹائل سیکھنا چاہیے تقریر کرنے کے، گرم جوش کرنے کے، لوگوں کو بتانے کے، علامہ اقبال کے جیسے اے طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے اور پرواز میں کو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دلوں کو چیرتا ہوا گزر جائے انسانوں کے تو وہ انسان تبدیل ہو جاتے ہیں. میں سے ٹیلی فون لائن پہ شکیل احمد بیگ صاحب، CRPC کے چیئرمین. السلام علیکم بیگ صاحب، کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ آج کل رات وغیرہ کو نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میری تھوڑی آئس کا پرابلم ہے تو اچھا بہتر ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دوست نے کہا کہ نہیں، آج ذرا سا ہم ان کو ٹیلی فون لائن کے اوپر ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو مدعو کریں گے. اور کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آپ کا ریڈیو وغیرہ؟ کے الیکٹرک کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. میجر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، شیخ ندیم صاحب اور سکینہ ظفر صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، ہماری سوشل ورکر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے کیا یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے کہ اس پر سیاست کہاں تک پہنچی ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہو رہا تھا کہ الیکٹرک جو ہے اب کسی اور ہاتھوں میں جا رہی ہے، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے. تو کیا ابھی بھی یہی والا چل رہا ہے یا کچھ معاملات ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے، ابھی تک آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں گے؟ جی آج تو ساری کا بات جی اب آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ الیکٹرک صرف ابھی بھی کسی ہاتھوں میں نہیں، انہیں کے پاس. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ شنگائی جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں خود شنگائی پیک کر رہی تھی کہ بھائی اس طرح ان کی کچھ شرائط ہے جس IPP کے نمائندے ہوئے میں وہ الیکٹرک کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. یہ الیکٹرک کسی صورت اس اپرچونٹی سے بینک نہیں کرنا چاہتی. دوسری ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ الیکٹرک نے ہی گورنمنٹ کو اور دیگر جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں انہوں نے یہ پریشر بلڈ کیا اور فوری طور پہ اس بات کو دبا دیا گیا ہے کہ ابھی تک اس پہ پاور جو منسٹری ہے اس کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو سولر والا ایشو ہے جو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ دیکھیں کہ میں اس کی بات کو یوں پکڑتا ہوں کہ جب سوئی گیس نے گیس کی بندش کی، لوڈ شیڈنگ کی، تو اس سے پہلے انہوں نے سوئی سرورت گیس کمپنی کا بھی LPG سلنڈر مارکیٹ میں آ گیا اور اس کے بعد آستے آستے انہوں نے ہمیں LPG کی طرف ڈائیورٹ کیا. پھر اس کے بعد کی لوڈ شیڈنگ کر دی، ساتھ ہی اس کو مہنگا ترین کر دیا سوئی گیس کو. تو کہنے کا مقصد ہے بالکل اسی طریقے سے جو چاہے کے الیکٹرک ہو، کیونکہ کے الیکٹرک کو دکھ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے سولر پینل زیادہ لگا دیے اور جو بجلی کے بل کے ملینس میں جاتے تھے وہ گھٹنے شروع ہو گئے کیونکہ لوگ اپنی جو الیکٹرسٹی خاص کر جو پیک اوور ہوتے ہیں وہ ان کی بجلی استعمال نہیں کر رہے. لوگ سولر پہ AC یا آئرن یا جو بھی مشین ہے اس پہ چلا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کے الیکٹرک گورنمنٹ جو پریشر بلڈ کر رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے سولر کے اوپر بھی، کیونکہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ بات ایڈ کر رہا ہوں، ان کا یہ پلان ہے جس کو فوری طور پہ اس کو روک دیا ہے کہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، سنا رہا ہوں تو اچھی خبر نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ اس کو 15 یا 20 میگا واٹ پر لے کے جائیں گے. اس کے بعد آپ گھنٹے کم کریں گے کہ جناب
मेगावाट के ऊपर आपको पर किलोवाट पैसे देने हैं, तो ये के इलेक्ट्रिक के लिए नुकसान हो रहा है। अच्छा, दूसरा कुछ लोगों ने ये किया कि मीटर लगवा दिए और मीटर से वो बिजली के इलेक्ट्रिक को सेल करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक समझे कि चल ये थोड़े से की बात है, इससे लोग नहीं लगवाएंगे, लेकिन लोगों ने बेतहाशा तक आए हुए कि इलेक्ट्रिक से तो उसकी वजह से इस पूरे इलाकों में भी सोलर पैनल लगानी, अगर किसी की बेचारी की सकत नहीं है, उसने एक पैनल लगा के पंखा और एक लाइट लगा के चलो जाने दो। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक की जो मस्तियाँ है या बदमाशियाँ कह लें, तो वो कम नहीं हो रही। और नहीं शकील साहब, ये सोलर वाला जो क्या कहते हैं सामने इशू आ रहा है, इसमें वाकई कुछ इस तरह का है या आप कंज्यूमर राइट से भी ताल्लुक रखते हैं? इसके ऊपर बाकायदा ये एक किस्म का एक देखिए तरीका कार्य होता है ना, पहले मिजाज बनाया जाता है, पहले उस बात को बाहर लाया जाता है। तो ये मिजाज आप लोग बनने देंगे या मिजाज को क्या कहते हैं रोकने की कोशिश करेंगे, या आ जाएगा जिस तरीके से? कोशिश करेंगे कि देखिए जो गरीब भी है ना, मिडिल क्लास में 10-15 किलोवाट तो उसकी भी इस्तेमाल होती है ना। अगर आप प्लेटें लगाते हैं तो जरूर सुनिए कि जितनी प्लेटें रखी उतनी बिजली आपको मिलती है, तो कम आती है। और फिर दूसरी बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि सेव करते हैं कि चलो रात में भी हमारे पास यूज हो। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो बयान है, अगर आप उसको पूरा पढ़े जिसमें उन्होंने तरतीब की है, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, फिलहाल ऐसा कोई प्लानिंग, फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन आगे जाके इस पे सोचा जा सकता है। अच्छा, ये वाली बात कही है, तो ये कभी भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक मदर पितर आजाद कहते हैं, अभी उन्होंने नेपरा में दरख्वास्त डाली हुई है तकरीबन 20 रुपए यूनिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो किसी सूरत भी कराची की आवाम को सुख और चैन से जीने नहीं देना चाहते। शकील बेग साहब, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर रहिए, क्या कहते हैं मेरे साथ और भी मेहमान पे दूसरा सवाल भी करते हैं, आज आपको भी अपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन रखते हैं आपके साथ ही, और आप सुनते भी रहिएगा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ एक खातून आई थी और उन्होंने कहा था कि 4000 NGOs जो है वो गोस्ट है, मतलब ये कि कागज़ों के अंदर तो है लेकिन फंक्शन वाइज कोई भी नहीं करे, लेकिन उनको भी फंड मिलता है। क्या आप इसके ऊपर एग्री हैं या आप क्या देखते हैं, ऐसा है कुछ? पाकिस्तान में निज़ाम ही कुछ ऐसा है, पैसा दो और अंडर द टेबल जो काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। बहरहाल मैं किसी NGO के बारे में कुछ इस तरह नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती नहीं, मेरी कोई NGO है नहीं, तो ये तो ब्लेम करने वाली बात हो जाएगी ना। मगर बहरहाल पाकिस्तान मैंने में भी हो उनसे रही यही काम। सवाल के बोले नहीं, मैं कंफर्म आपको कह सकता नहीं, हूं। कुछ इदारे हैं कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब एक की वजह से हम सबको ये नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हो रहा। देखिए बहरहाल जो काम हुकूमत मेजॉरिटी तो है ना, जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो NGOs कर रही हैं। अगर मिल के दोनों को लैब करें तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों में जज्बा तो बहरहाल है और हर तरफ दिखाया है, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो कोविड का ज़माना हो, चाहे वो ज़लज़ला कोई आया हो, हम पाकिस्तानी कौम हेल्प करने का जज्बा रखती है, बिल्कुल रखती है। मगर कुछ प्रोवाइड तो करें ना। अब देखिए जहाँ इन्फ्लेशन है, बहुत सारी महंगाई है, तो हम जिस्मानी तौर पे तो मदद कर रहे हैं, मगर माली तौर पे भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ मदद करें, NGOs के साथ कोलैब करें और उनको बहरहाल आप फंड्स दे रहे हैं ठीक है, मगर उसके साथ और भी मजीद कुछ होना चाहिए। इसको काउंटर चेक कैसे किया जाएगा? आप कहते हैं कि बिल्कुल ही कोई माशाल्लाह हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ चल रही है, सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या देखते हैं? जिस तरह ये 4000 NGOs की बात मेरे पिछले प्रोग्राम के अंदर भी आई, और NGOs के बारे में अक्सर ये भी है सुना है कि वाकई इसी तरह के फंड जो बाहर मुल्कों से आते हैं तो वो तो कुछ पिक्चर्स दिखा के कुछ इस तरीके कहते हैं कि देखिए 100% अगर उनको मिलता है तो लाइक वो 30% लगाती हैं, हम भी यही सुनते हैं। मगर अब देखिए 30% लगा रही हैं तो कितना हो रहा है, अगर वो 50% भी लगाना शुरू कर दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। जी, आप क्या कहते हैं इस सवाल से? बिल्कुल, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो उन्होंने आपके लास्ट प्रोग्राम में बात की है NGOs के बारे में, क्योंकि मैं कराची में मिलता रहता हूँ इस तरह के लोगों से, तो मैं बड़ा दुख होता है मुझे जब मैं इस तरह के आई कम अक्रॉस विद सच पीपल, और वो लोग हेड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ NGOs को, लेकिन उनका अपना जो ज़ाती करैक्टर होता है उसके बारे में मुझे मालूमात होती हैं, तो मुझे दुख होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह का है कि ये एक मादर पिदर आज़ाद सा थोड़ा सा इसको छोड़ा हुआ है शायद। इसमें खाली मैं इन्हीं को नहीं कहूँगा बल्कि और भी बहुत सारे जितने भी हमारे और भी इदारे हैं आपने देखा होगा कि अभी JDC के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने ऑडिट कराने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है, तो थिंग्स लाइक दैट। तो ये इनका ऑडिट होना चाहिए मैं समझता हूँ, और उस ऑडिट के तहत फिर इनको चलना चाहिए।
اور پراپر इनका एक सिस्टम होना चाहिए जो गवर्नमेंट को डिवाइस करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट है। क्यों मना क्यों कर रहे हैं? वजह कुछ ना कुछ तो होगी ना, वो चाह रहे हैं कि देखिए, कोई मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जितने भी हैं इदारे, इनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए करेगा कौन? और रूटीन में होना चाहिए। गवर्नमेंट करेगा को कौन? इदारा, गवर्नमेंट का इदारा करेगा, गवर्नमेंट के इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर होंगे तो ये करेंगे। फिर भी कम से कम कुछ तो इनके ऊपर एक कंट्रोल होगा। अभी तो कोई कंट्रोल नहीं है जो मैं नहीं, रजिस्ट्रेशन तो रोक दी गई है फिलहाल, देख रहा हूँ। अभी इस तरह हो नहीं रही। ठीक है, नहीं रजिस्ट्रेशन और होती है ना, बहुत पुरानी सारी- तो चल ही रही है ना सारी के सारी। पुरानी चल रही है, नई लेकिन को रोक मतलब दिया जो गया अगर फेयर है तो वो क्यों क्या कहते हैं वो नहीं करा नहीं, रहा था? बेसिकली वो फंड्स वगैरह का इशू आ रहा था, अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं, जो हो कुछ तो हो रहा है ना, तो इसलिए फिर रोक दी गई है। बहुत सारी बुराइयों का बास भी बन रहे हैं, खाली फंड की बात ही नहीं है। ठीक है, कराची के हवाले से भी गुफ्तगू। शकील बेग साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से? शेख साहब भी कुछ कह रहे हैं, सकीना भी कुछ कह रही है कि कोई ऐसा एनजीओस के हवाले से अगर मैं सवाल करूँ आपसे, टेलीफोन लाइन पे हैं आप मेरे साथ? जी मैं उसमें जवाब नहीं देता हूँ आपको, इंटरव्यू भी क्योंकि माशाल्लाह आप भी इसी बहुत एक्टिव है इस हवाले से। जी मैं अच्छा मैं सेकेंडली मैं करता हूँ नदीम साहब की बात को। नदीम साहब की बात बिल्कुल सही है, मतलब की तरह लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं बता अच्छा, आवाज़ थोड़ी सी क्या कहते हैं मेरे जो क्या कहते हैं, जी आवाज नहीं आ जी रही? जी हाँ अब आ रही है, ठीक है। अच्छा मैं अब कर रहा था, वो सिर्फ मोबाइल पकड़ के हाथ में दर्द होता है तो मैं थोड़ा आगे पीछे अच्छा अच्छा तो, अच्छा तो कहने का मकसद ये है कि मैं अब ये कर रहा था कि जो एनजीओज है ना उनको नजर किधर आजाद नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं नदीम साहब की बात को, मेरे साहब की बात को सेकंड करता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अब एनजीओ या ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराना बहुत जोखों का काम है, अब आसान नहीं है। अगर कोई नाम लेके इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि यही एनजीओज ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में भी बहुत अहम रोल अदा करती है। और इसमें मेजर साहब ने फरमाया, मैं भी यही कहूँगा कि बहुत सारी ऐसे लोग हैं कि जिनको शायद हम जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये काम इनको नहीं करना चाहिए, ये कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चैरिटी डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो अपनी जगह चेक लेके बैठा हुआ है। आप यकीन करें कि मैं क्योंकि ट्रस्टी हूँ एक इदारे का, आप मुझे 8 या 9 महीना हो गया है क्लियरेंस करवाते हुए, क्लियरेंस नहीं हो रही, इतनी सख्तियाँ और ऑडिट रहता है, सब चीजें। एक तरफ ये चीज नजर आती है और दूसरी तरफ तो ऐसे लगता है कि हलवा है, जैसे अरबों करोड़ों रुपए उतर रहे जमीन पर। और जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि शायद 30% खर्च करते 70, तो हकीकत बताऊं कि ऐसा भी नहीं है, बहुत ही बुरे हालात है, क्योंकि फंड को ना इनको देकर फिर उसके बाद दोबारा ले लिया जाता है। वो कहा जाता है अंडर द टेबल क्या होता है, वो एक बड़ी गंदी कहानी है। मैं ये समझता हूँ कि रजिस्टर्ड एनजीओज को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग बेचारे उनकी तरफ तक रहे होते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि शायद ये हमारे मसाइल को हल करेंगे, लेकिन अफसोस होता है। और मैं ये कहूँगा कि हम बहुत ज्यादा लालची से होते जा रहे हैं। एक तरफ वो कौम है जो हर मुश्किल वक्त में काम आती है, वो एनजीओज नहीं है, वो कौम है पाकिस्तान की। वो अगर मैं कम्युनिटी वाइज करूँ तो शहर कराची हमेशा निकल कर बाहर आता है। अब तो पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि किसी को मुश्किल वक्त में हो तो वो फिर एनजीओज के रोल को नहीं देखते, बल्कि एक पाकिस्तानियत का रोल होता है, एक इंसानियत का रोल होता है। और इंसानियत जी 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 चेहरा नहीं देखते वकील, हर चीज़ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है शकील भाई, मैं आपसे एक और सवाल करूँ कि इस वक्त जो अगर केयर एक्ट की मैं बात करूँ तो क्या बिजली बढ़ने वाली है? जिस तरह पेट्रोल कम हो गया, आज हो सकता है कुछ कमी की खुशियां सुने आपके? नहीं कोई कमी की कोई ऐसी नवी नहीं, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि आपने IMF का पैसा भी देना है, वो भी टैक्सेस उसी में ही आते हैं। एक चीज ध्यान में रखा करें कि जब यूनिट महंगा होता है तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उसी रेशो के हिसाब से बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज 18 रुपए यूनिट है, उसके अंदर मजीद 18 रुपए आप ऐड करेंगे तो 36 रुपए हो गए। तो अगर 36 रुपए का यूनिट हो गया तो फिर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है ना, जो मुख्तलिफ टैक्सेस है, यानी कि एक टैक्सेस की तकरीबन 7 टैक्सेस है, आप उस 7 टैक्सेस के पैसे भी उसमें ऐड होंगे। तो कहने का मतलब है कि मुझे तो फिलहाल कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। अलबत्ता मैंने एक चीज देखी है कि जब भी नेपरा को या ओबरा को कोई रिक्वेस्ट जाती है तो मिसाल के तौर पे वो 25-30 रुपए करते हैं, तो फिर उसके बाद उसमें से 1-2 रुपए कम करके वो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया हो कि नहीं जनाब अब पैसे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे, अल्लाह ना करे वैसे ना बढ़े, उम्मीद है। लेकिन कितने तक बढ़ने के चांसेस हैं? अभी उन्होंने तो रिक्वेस्ट की हुई है तकरीबन 19 रुपए कुछ पैसे की,
ठीक है। अब और आपकी जजमेंट क्या है कि कितने तक आएंगे? मैं तो जजमेंट नहीं है, मेरी तो दुआ है, मैं तो नहीं, दुआ से हट के मैं जजमेंट चाह रहा हूँ आपकी। दुआ तो सभी कर रहे हैं कि कुछ ना हो। ये जजमेंट हम अपने मोहतरम जजेस साहबान के पास छोड़ते हैं। हाँ। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, पहली बात है बढ़नी क्यों चाहिए? अभी आप किस तरह बढ़ा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम से आप पैसे लगवाते हैं हमारे बिलों में। मेरा सवाल ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को आप कैसे क्लियरफाई करते हैं? हम आपको बताते हैं कि आपने ये फ्यूल इस्तेमाल किया था, आप बताते हैं कि आपने फलानी कंपनी से ये फ्यूल परचेज किया था और कितने अरब रुपए का किया था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कभी आप आवाम को देते हैं? अरे सर, अंडर द टेबल ही सारी कहानियां हो जाती होंगी। मैं कहता हूँ कि जिस तरह आप एनजीओ की बात करते हैं ना, उस तरह ये भी इसी तरह करते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ये लगा देते हैं, आप पिछले बिलों पे लगाकर अगले महीनों में अपने पैसे ले लेते हैं। अच्छा शकील साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये जो सोलर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा शोशा दे के सोलर की सेल को रुकवाने की कोशिश हो रही है? कुछ इस तरह की चीज तो नहीं आ रही? क्या पता है, क्योंकि हमने सुना है कि कोई हुकूमती अहदेदार है, उन्होंने भी सोलर का कुछ कारोबार भी किया है, तो शायद वो सस्ते हो रहे तो महंगा करने का भी हो गई। चले, आप हमारे साथ लाइन के ऊपर हैं। शकील बेग साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त अगर मैं थोड़ी सी कराची की तरफ भी आ जाऊँ कि कराची माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले दिनों भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो क्या बेहतरी की सूरत हाल नज़र आ रही है? अब हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ गई, MQM भी खुल के साथ आ गई है, अब मीटिंगें भी हुई है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, इसके हवाले से, तो क्या बेहतरी है? सिंध की हद तक तो कोई चांस नज़र नहीं आता, क्योंकि वही लोग हैं जिनको आप आजमा चुके हैं और कई दफ़ा आजमा चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पे मोहरें लग चुकी हैं। सही है, तो ये जब तक मट्टी नहीं भरेगी पेटों में, उस वक़्त तक इस मुल्क में, यहाँ पे कम से कम सिंध की हद तक मैं समझता हूँ कि तब्दीली नहीं आएगी। पंजाब और आगे बाकी मुल्क में आप देखें बहुत तब्दीली आ चुकी है। आप जाएँ विज़िट करें तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज पाकिस्तान में नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफेंस आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान उस लिहाज से बहुत चेंज पर है, सिवाय सिंध की हद तक, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि दिलों पे मोहर लग चुकी है। तो ये जब तक चेंज नहीं आएगी। नवाज साहिबा भी अभी आई है पंजाब के अंदर, बड़े एक्टिव अंदाज के अंदर शुरू हो गई है। देखिए, ये लोग काम करने वाले हैं, पहले भी किए उन्होंने और अभी भी काम करेंगे। तो ये लोग काम करने वाले नहीं है यहाँ तो आप देख चुके हैं। आप मुझे बताइए कौन सा काम किया? ठीक है, एक मुर्तज़ा वहाब साहब हैं जो नज़र आ रहे हैं बेचारे, जब से वो बंदा आया है आपको फिर भी कराची की रोडों के ऊपर कम से कम कुछ बेहतरी नज़र आ रही होगी, कुछ स्ट्रीट लाइट्स, कुछ नाले, कुछ चीज़ें कराची में बेहतरी नज़र आ रही होगी। ये एक बंदे की वजह से ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ तो कोई, ये सारे वही पुराने लोग हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए। अगर ये बसें भी चलाई हैं तो पता नहीं इन्होंने शायद अपनी किसी वो पॉपुलैरिटी के लिए, वोट बैंक के लिए शायद चला दी हो। ये थोड़े अर्से में आप देखेंगे कि ये टीन के डब्बे बना के तो उसके ये बसों की भी उतार के खा बसों का भी इब्तिदा हुआ है जी, पिंक बसों का भी इब्तिदा हो रहा है। वो अल्लाह करे और ये चल जाए तो शायद चेंज आ जाए, शायद अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी हो दिलों में इनके। लेकिन लगता नहीं है, इनके जो अतवार है उससे मुझे नहीं लगता कि अल्लाह, मुझे तो ये लगता है कि क्यों नहीं है ये? नहीं, देखिए, इंसान की ना एक पर्सनालिटी होती है, उससे पता चलता है कि कुछ लोग दुनिया के लिए बने, उनके अंदर सेल है, वो उस वक्त तक चलेगा जब तक दुनिया में है, उसके बाद उनके लिए आगे का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगी कि हमारा कराची, मैं कराची बेस्ड हूँ तो कराची की बात करती हूँ। वैसे तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मगर देखिए कराची जहाँ जितना इग्नोर हुआ है, 70% इनकम जनरेट करता है कराची। क्या मिलता है कराची को? आप जिस सड़क पे चले जाएं, इस कदर, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं तो जिस मोहल्ले में रह रही हूँ बाहर से अच्छा है, बीइंग शारा फैसल पे, आप सोचो उनकी सड़कें जो अंदर की, क्या बुरा हाल है। ज़रा बारिश होने दें, आप थोड़ी सी बारिश होने दें, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, पता ही नहीं चलता। इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, बस का सिस्टम देख लें। हमारा कराची इतना इग्नोर क्यों, समझ ही नहीं आती, हर लिहाज से इग्नोर किया हुआ है कराची को। क्यों? वजह तो भी ये हुकूमत बताए ना हमें कि क्यों। हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, हम पेट्रोल भी बेयर कर रहे हैं, जो जब भी बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, ये बिजली गिरती कराची वालों पे सबसे ज्यादा। देखिए, ये बैड गवर्नेंस, रिश्वत सतानी। ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ कराची के अंदर ये सारी चीजें होती है, दूसरे शहरों सोलर की आपने बात की ना, तो अव्वल तो इनको जो के इलेक्ट्रिक वालों को अब डरना चाहिए वैसे, क्योंकि सोलर सिस्टम आ गया तो अब तो मेरे ख्याल से उनको कीमतें लो करनी चाहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस तो कुछ है। ये सोलर के ऊपर पाबंदी लगाने के चक्कर में है, ये जो शकील भाई बात कर रहे हैं
कि सोलर के ऊपर ये टैक्स लगाने के चक्कर में है कि आप अगर सोलर से बिजली बनाएंगे, अल्लाह के सूरज को इस्तेमाल करेंगे, उसकी भी सूरज तो उसकी भी आप टैक्स, उसका भी घर में हवा आ रही है, उसका भी टैक्स दें। उसका भी आप टैक्स दें, और बिल्कुल ही होने वाला है। तो मैं शकील भाई से कहूंगा कि बाहर निकलें, हम आपके साथ हैं और ये तहरीक चलाएं, और ये आपको अगर हमें मिल रहा है हाफिज नईम साहब को कराची लेना वालों को, पड़ेगा। तो अगर अगर तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और कोई बाहर से लाके कुछ कर रहा है अच्छा, उस पे भी आप लोग एग्री नहीं है, मतलब कौम को जीने ही नहीं देना है। तो ये सोलर पे कम से कम एक रास्ता है, इस पे फिर वो क्या करेंगे? स्नैचिंग होगी, किसी के भाई बाप बेटे को मार देंगे, यही होगा ना। जब घर में फाके होंगे, बाप देखेगा घर में आके कि बच्चे के पास रोटी नहीं है, वो क्या करेगा फिर बताएं आप। तो फिर आप, ये सारी चीजें जन्म देती हैं, ये सारी जो चीजें हो रही है हमारे माशरे में। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या कहते हैं? शकील बेग साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। ये देखिए, मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार जो अभी आपके सामने मेजर साहब फरमा रहे थे ना कि शकील साहब बाहर निकले और इस पे आवाज उठाए, तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल रेडी हूँ आवाज उठाने के लिए भी, और मैंने इस पे आवाज शुरू भी कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि इस वक्त जितना क्राइम बढ़ रहा है शहर कराची की मैं अगर बात करूं, तो उस क्राइम बढ़ने के अंदर के इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा जिम्मेदार। वजह क्या है कि आप चले मेरे साथ छोटे इलाकों में, लोगों ने, क्योंकि जो केएमसी ने लाइटें लगानी होती हैं वो लाइटें तो लगी नहीं है। अब बड़े बड़े शहरों में तो नजर आती है, लेकिन आप जरा सा एडजस्ट एरिया में चले जाएं, कच्ची आबादियों में जाएं, तो आपको कोई लाइट नजर नहीं आती। तो वो क्या होता है कि लोगों ने, बेचारों ने अपनी मदद आपके तहत बिजली लगाई होती है, वहाँ 3 घंटे 2.5 घंटे की लाइट चली जाती है। अब वहां फिर क्या होता है, डकैतियां होती है, लूट मार होती है, और अब तो इतनी बदतमीजी का बाजार गर्म हो गया है कि खवातीन का एहतराम भी नहीं किया जाता कि एक खातून है किसी मोटरसाइकिल में किसी के साथ जा रही है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, वो व्हील चेयर पे जा रही है, एक खातून लेकर व्हील चेयर वाली को लूट लिया जाता है। तो सर, कहने का मकसद ये है कि शहर कराची को हकीकत बात यह है कि लोग कहते हैं नजर लगी, नजर नहीं लग गई, उसकी कमाई पे नजर पड़ गई, उसके पैसे कमाने। कराची पहले ऐसा नहीं था, कराची को बना दिया गया। अभी कराची कभी भी ऐसा नहीं था, कराची हर चीज में खड़ा हुआ है, मगर कराची को मजबूरन ऐसा बना दिया। इस तमाम प्रॉब्लम के बावजूद भी, और हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे अभी आपने पिंक बस का जिक्र किया, पीपल्स बस का जिक्र किया, एक अच्छा एडिशन है, लेकिन क्या कराची की सड़कें काबिल है? पहले तो सवाल मेरा ये शुरू होता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बसें हैं, नो डाउट वो खचाखच भर के जाती हैं। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि मैं खुद 2-4 लोगों ने मुझे खुद कॉल करके मेरे प्रोग्राम में बताया कि चूंकि लियारी में बिजली नहीं होती है, तो लियारी से जो बस चलती है तो हम उसमें बैठ जाते हैं, 50 रुपए किराया आप बिलीव करें, मुझे बताया कॉल करके कहा है। अब आप सोचे, कहते हैं बिजली नहीं होती तो हम क्या करेगा, हम जाता है बस में बैठते, तो एसी लगा हुआ है उसमें। कहने का मकसद है वो अच्छी चीज है, लेकिन काश कि जो पहले व्हाइट बसों के साथ हुआ, नेबुतुल्लाह खान साहब के टाइम पे सीएनजी बसें आई, फिर मुस्तफा कमाल साहब ने उसको उसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, वो बेकार हो गई, सड़ गई बसें। अब सुनने में आ रहा है कि उसको दोबारा डीजल इंजन में लाकर शहर कराची में चलाया जाएगा। मकसद कहने का यह है कि शहर कराची तो देने के लिए तैयार है। शहर कराची ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, हमेशा हर चीज में आगे बढ़ चढ़कर काम किया, लेकिन क्या शहर कराची के लोगों के साथ क्या हुआ, कराची के अवाम के साथ क्या हुआ? क्या ये अगर पूरे पाकिस्तान के ऊपर लूट मार, स्ट्रीट क्राइम एक तरफ करते हैं और शहर कराची का स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं होता? यहाँ पर डकैती कम क्यों नहीं होती? यहाँ पर लूट खसोट कम क्यों नहीं होती? दिल दुखता है सर हमारा, क्योंकि हम कमाते हैं, कमाऊ खुद शहर कराची है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और हम अपने भाई बाप बेटे को हम सड़कों पे मारने के लिए भी छोड़ देते हैं। अब एक बंदा निकलता है घर से बाहर, कोई बाप है कोई भाई है, तो उसका पता नहीं चलता कि वो वापस आ रहा है नहीं आ रहा। क्या कराची को लावारिस समझ लें? क्या लावारिस ही हुआ है ना, लावारिस नहीं है। आपसे सलीम भाई सवाल है, क्या आप अपने आप को महफूज समझते हैं स्टूडियो से घर आने में, अपने कारोबार में जाने में? आप महफूज समझते हैं अपने आप को? अभी 4 दिन पहले एक वाकया हुआ कि एक बेचारी बाइक के ऊपर 2 बच्चियां और वो जा रही थी, उसके जो है ना पर्स छीन लिया, वो खुद गिरते गिरते मरते मरते बच्चे, मतलब ये भी 3-4 दिन पहले का ही वाकया, और ये हब रिवर रोड की तरफ हुआ है ना, जो रिपोर्ट हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कच्चे में डाकू लड़ रहा है, वो कच्चे में नहीं लड़ पा रहा, उसको पक्के में लाके बिठाया जा रहा है, वो पुलिस वालों को बेचारों को, वो कच्चे में लड़ नहीं पा रहे। अच्छा, फिर मैं आपको के इलेक्ट्रिक की तरफ लेकर आता हूँ, शेख साहब से सवाल करते हैं कि ये जो
आप कराची के टैरिफ की बात करें, दूसरे शहरों के अंदर जिस तरह लाहौर है और जगहों के ऊपर, उसके अंदर भी कोई इसी तरह की चीज़ें आ रही है, या क्या फ़र्क है? जगहों पे कराची की कुछ प्राइसेस यूनिट वाइज अभी किसी जगहों पे कम भी है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर हम लाहौर से या फैसलाबाद से या दीगर और कुछ शहरों से करें तो कुछ जगहों से हम कम भी हैं रेट में, कुछ जगहों पे कम भी है, हमारे टैरिफ कम भी है। अच्छा। लेकिन अभी हुआ ये है कि पंजाब में जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने वहाँ ये अनाउंस किया है कि आज बकायदा ये छूट दी थी कि वो 100 यूनिट या 150 को फिलहाल एक उससे स्लैब उसका मजीद कम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से बड़ा परेशान हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब है, तो अगर वज़ीर आज़म वहाँ से तो फिर यही फैसिलिटी सिंध में क्यों नहीं? तो ये तो ये जो नेपरा होता है ये तो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, वज़ीर आला इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है जी। उसकी वजह ये है कि फिर सिंध में भी होना चाहिए ना, फिर पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए। आवाज उठानी चाहिए, मुराद अली शाह साहब को भी इसमें आवाज उठानी चाहिए कि जनाब इधर भी जो आवाम है उसके यूनिट जो है सस्ते किए जाए, उनको भी सस्ती बिजली दी जाए। बात यह है कि इसके लिए अगर वज़ीर आला पंजाब एफर्ट कर रही है जो कि 62% है पाकिस्तान का, तो भाई जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा सिंध है, तो कम अज कम मुराद अली शाह को भी फिर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए ना। ठीक है शेख साहब, लाइन पे रहिएगा। जी शेख साहब, आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हो हमें फेडरल का भी सारा पार्ट होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। आप शकील भाई से मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की कि शकील भाई आप आगे बढ़ें, और साथ ये नईम हाफिज़ नईम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तो अमीर बन गए कि वो भी कमर कस लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है कि सोलर के ऊपर टैक्स लगने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब एम्बेसलमेंट करती है गवर्नमेंट, बैड गवर्नेंस करती है गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सारे मुल्क को लूट के खाते हैं। उसके बाद वो उस पैसे को कवर करने के लिए IMF जब शर्तें लगाती है तो वो गरीब आदमी की जेब से पैसे निकालते हैं आप कि 1 लाख वाला और 50,000 वाला भी टैक्स देगा। यही हाल अब ये कर रहे हैं कि लोगों ने घरों में अगर सोलर लगा लिए तो उससे भी टैक्स लगाने। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, एक और चीज़ आ रही है कि जी IMF कहती है कि जी पेंशन पे भी रिफॉर्म्स करें। जो बेचारा आदमी अब सारी ज़िंदगी जिसने अपनी दी और आज वो बैठ के पेंशन ले रहा है, गरीब आदमी, ठीक है, मैं अपने फौजी सिपाहियों की बातें करता हूँ, सोल्जर्स की बातें करता हूँ जो कहाँ कहाँ बैठे हैं और बेचारे अब जिन्होंने किस किस मुश्किल हालात में ज़िंदगियाँ गुजारी और तकलीफ़ें सही, ठीक है, और अब रिटायरमेंट के बाद अगर वो कहीं बैठे हैं, ठीक है, उनकी पूरी एजें वहाँ गुजर गई, तो अब उनको पेंशन भी ना मिले, तो ये अब उसकी तरफ भी जा रहे हैं, पेंशन रिफॉर्म्स की तरफ, उस पर भी कदगन लगाने के चक्कर में है। तो ये हाफिज़ नईम साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारे में तो सुनने में आ रहा है कि वो कराची छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गए। बिल्कुल अच्छी बात है जहाँ जाए ताकि वो सेंटर में हो, लेकिन उनको अब किसी घर में नहीं रहना चाहिए, उन्हें अब रोड पर होना चाहिए, किसी कंटेनर पे होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन वो वहाँ से रह के भी फाइट कर सकते हैं। वो बंदा ऐसा है, मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है और ये उनके पास मौका है कि इस चीज़ को लेकर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है उनको बिल्कुल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और आवाम को साथ मिलाना चाहिए। उनके साथ आवाम खड़ी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि 18 रुपये यूनिट बाकी के बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये नेपरा वगैरह ये सब जितने ऊपर बैठे हुए हैं, जो साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये सब मज़े कर रहे हैं, आम गरीब आदमी पिस रहा है यहाँ पे। तो वो सोलर भी जो है अल्लाह की जो है वो सूरज की रोशनी को भी इस्तेमाल ना कर सके। नहीं तो अब आप देखें ना, अगर हाफिज़ साहब की बात कर रहे हैं, आप हाफिज़ साहब अगर लाहौर में है तो वो बनेगा ही नहीं मूवमेंट जो नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, वो वहाँ रह के भी बना सकते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त और कोई नज़र भी नहीं आ रहा। आपस की बात है सलीम भाई, पूरे पाकिस्तान की आप पॉलिटिकल होराइजन पर देख लें तो आप क्या इस चीज़ को फजल रहमान साहब के पास लेके जाएंगे? फजल रहमान तो इस वक्त बारगेनिंग के चक्कर में किसी तरह कि मैं इनको बारगेनिंग पे लाऊं तो मुझे 2-4 कमेटी को चेयरमैन को चेयरमैनशिप मिल जाए कश्मीर कमेटी की। आप बताइए ना मुझे, मैं किसको देखूँ, मैं किसकी तरफ जाऊँ? ये एक बंदा नजर आता है, हाफिज नईम और रहमान खान साहब, दीनी जमातों में भी नजर आता है, बाकी सारे सेक्टेरियन है। आप इन लोगों से बाकी सारे सेक्टेरियन। सकीना साहब आप क्या कहती हैं, क्या कहते हैं जो भी हमारी हुकूमत आई शायद हो सकता है कुछ? देखिए मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले मेरा सवाल ये, आप जो सवाल पूछे थे IMF से कर्जा क्यों लिया, और लिया है तो कहाँ खर्च हो रहा है, हमें भी नज़र भी तो आए ना कहाँ खर्च हो रहा है। हम क्यों ये नहीं करते कि पाकिस्तान में ओवरऑल हम कारोबार बढ़ाएं, कर्जा क्यों लिया जाता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल बेहैसियत औरत एक मैं घर अपना चलाने के लिए, राशन डालने के लिए मैं किसी से कर्जा लिए जा रही हूँ, तो मैं तरक्की कैसे करूँगी? मुझे तो इन दी एंड उसको पे करना है ना, तो ऐसा क्यों है? मतलब हम इतना, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, कैसे करेंगे? कहाँ है फिर वो, किस पे खर्च हो रहा है, कहाँ है वो IMF का जो कर्जा लिया गया जो हम पे कर रहे हैं,
عوام پے کر رہی ہے، وہ قرضہ کہاں لگا وہ تو پتہ چلے. ہمیں یہ تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی آئی ایم ایف کی قسط اتارنی ہے تو بھئی آپ پہ یہ پیٹرول کا بٹن ڈال دیا گیا، بجلی کے آپ کے یونٹس بڑھا دیے گئے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے. میجر صاحب آپ تو اس کا صحیح طریقے سے جواب دے سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آئی ایم ایف وغیرہ یہ پیسے آ رہے ہیں پھر قسطوں میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ینگسٹرز کو کیوں نہیں کاروبار کرنے دیا جاتا کہ تاکہ وہ دیکھیں منظر بڑی عام اچھی پہ بات کی. کچھ تو خیر مجبوری ہے، پاکستان کے حالات اس طرح ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر کی بہت زیادہ پاسٹی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف سے جانا پڑتا ہے. پھر آئی ایم ایف ایک ڈاکٹر ہے، آئی ایم ایف آپ کو مشورے دیتا ہے اچھے کہ آپ نے کل کو ہمارے قرضے واپس کرنے اور ہماری وجہ سے 10 اور آرگنائزیشن آپ کو قرضے دے دینے، کیونکہ ہم آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تو آپ کم از کم تگڑے ہو جائیں، یہاں سے پیسے جنریٹ کریں. تو یہ ان جگہوں سے پھر پیسے جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ غلط سائڈوں پر زیادہ جاتے ہیں جہاں عام آدمی پس رہا ہے اس کو مزید پیسنے پر لگے ہوئے ہیں. امیر طبقے پر کوئی ٹیکس نہیں لگاتے، جو آدمی 1000 گز کے گھر پہ یا اس سے اوپر گز کے گھر پہ رہتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگاتے. یہ جو بڑی گاڑیاں استعمال کرتا ہے اس کو ون ٹائم تو آپ لے لیتے ہیں، اس کے اوپر کیوں ٹیکس نہیں لگاتے کہ جناب وہ ان بڑی گاڑیوں کا ٹیکس دے. اس کی جو ٹریولنگ ہے اس کے اوپر وہ آج ادھر اس کا قدم ہوتا ہے، دوسرے دن وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگاتے. غریب آدمی جو یہاں سے بس میں بیٹھ کے جو ہے وہ لیاقت آباد سے جو ہے وہ نیو کراچی جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیتے تو یہ ہیں. باتیں کہاں کی جائے؟ اجلاس میں اس کی کا مطلب جائے، ہماری میڈیا policies تک صحیح کی نہیں جائے، ہیں. ہمیں کہاں یہ پہ کی تحریک جائے؟ چلانی پڑے گی. میں نے اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تحریک صرف اور صرف جماعت شکیل صاحب تحریک چلانی پڑے گی بھائی. میں تحریک بھی چلانی پڑے گی. اور میں دوسری طرف بات بتا دوں کہ حافظ نعیم صاحب کی مجبوری ہے منصوروں میں بیٹھنا، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے اور ڈیفینیٹلی وہ پورے پاکستان کے امیر ہیں، لیکن وہاں سے بیٹھ کر وہ لیڈ کر سکتے ہیں. بالکل میں شیخ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ اچھی لیڈ کر سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی اور خاص کر پاکستان کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی حافظ نعیم صاحب کی صورت میں ملی ہے. ہمیں اس کو، کیونکہ میں خود ان کے ساتھ بجلی کے معاملات میں بہت زیادہ میٹنگ کر چکا ہوں، ان کے ساتھ ہم نے کہنے روڈوں پہ سڑکوں پہ مارے بھی کھائی ہیں، لیکن میں نے واحد پارٹی دیکھی ہے جماعت اسلامی کہ جو نیپرا اور اوپرا کی ہر ہیرنگ میں آتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیکھا. شہر کراچی کے جو بانیان کہلاتے تھے ایم کیو ان کو بھی میں نے نہیں دیکھا. اگر آتے بھی تھے تو نیپرا کے اجلاس کی ہیرنگ شروع ہوتی تھی اس سے پہلے چلے جاتے تھے. پیپلز پارٹی کے میں نے کبھی کسی ایم پی ایم این اے کو نہیں دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واحد پولیٹیکل پارٹی تھی کہ جو ہر اجلاس میں مجھے نظر بھائی ایسا تو نہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پھر یہ بھی کہ میں مصروف ہوں منصوران کے ادھر کیا کہتے ہیں میں نہیں آ پاؤں گا، کراچی والے آئیں گے یہ؟ جی میرا خیال ہے کہ ایسا حافظ نہیں کریں گے، بلکہ جماعت اسلامی کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن کچھ اگر آپ کے اندر اگر انرجی ہے نا تو مجھے یقین ہے کہ حافظ نعیم صاحب اس انرجی کا استعمال کریں گے. دیکھیں کراچی میں پروفیسر غفور صاحب تھے، وہ تھے، یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر حافظ نعیم صاحب نے اس وقت کو ضائع کیا اور اگر وہ سمجھ گئے کہ میں وہاں آرام سے بیٹھ گیا تو وہ ان کی ذات کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان جماعت اسلامی اور پاکستان کو ہوگا. ان کو اٹھنا ہوگا، ان کو اس بات کو اوپر لے جانا ہوگا. آپ کی میں پروگرام کی یہ سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میٹرک کے بچے پیپر دے رہے ہیں اور ابھی پرائیویٹ اسکول ان سے جون جولائی کی فیسیں وصول کر رہے ہیں. کتنی بڑی زیادتی شہر کراچی کے ساتھ ہو رہی ہے. کیوں زیادتی یہ ہو رہی ہے بھائی؟ کیوں کی جا رہی ہے یہ زیادتی؟ یہ کراچی کی بات آپ کہتے ہیں تو کے الیکٹرک بھی کراچی میں. ٹھیک. اچھا میں آپ سے یہ ایک اور سوال کرنے لگا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس وقت جماعت اسلامی آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ نعیم کے ساتھ ان کا مستقبل بہت اچھا نظر آ رہا ہے؟ نہیں بالکل ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ایک کراچی میں جتنا تک وہ امیر رہے ہم نے ان کو دیکھا بہت ایکٹیو رہے. حالانکہ کے الیکٹرک نے ان کے گھر پہ ان کے لیے کتنے مسئلے کھڑے کیے یہ ہم جانتے ہیں یا حافظ صاحب جانتے ہیں، کیونکہ میرے گھر پہ بھی ہو چکا. مجھے بل بھیج دیتے تھے، کبھی میری لائن کاٹ دیتے تھے کیونکہ میں آواز اٹھاؤں گا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ کے شو میں آج میں نے اتنے سارے لیکچر دیے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے ملے گی نا. بات یہ کہ یہ زیادہ اس کا مطلب اس کو زیادہ پاپولر کیا جائے نا آپ، تاکہ آپ ایکٹیو رہے اور جس طرح شیخ صاحب بھی بول رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ میرے گھر اندھیرا ہو جائے
युवाओं का नहीं, इस वक्त इनको मैं समझता हूँ मुत्तहद होने की ज़रूरत है, तारीख चलाने की ज़रूरत 16 है, लगा लें आप भी, कोई मुश्किल नहीं और है। जमात इस्लामी को मुत्तहदा के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है। अगर हाफिज़ नईम साहब मुत्तहदा के साथ हाथ मिला लें, मुत्तहदा में अब वो बाली मुत्तहदा नहीं है जिसको आप ये पुराने उसमें देख रहे हैं, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग हैं, तो हाफिज़ नईम साहब को अब ये सारी तलखियाँ भुलाकर इस जगह मुफाहमत पे जाना होगा, और मुफाहमत का बादशाह यहाँ से बनना होगा। मुफाहमत का बादशाह करप्ट पार्टीज़ की तरफ जाके नहीं बनना आपकी होगा। नज़र के अंदर शेख साहब कराची को ऑन कौन करता है? देखिए, कोई भी ओन नहीं करता, सिर्फ अगर किसी ने ओन किया है तो एक मुत्तहदा है, ठीक है, और एक आपकी जमात इस्लामी है। इसके अलावा आप मुझे बता दें कौन सी पार्टी है जिसने कभी इस शहर को ओन किया। दूसरे ये पीपल्स PTI पार्टी को के तो बड़े अंदर अच्छे तरीके से उसको फेवर किया गया कराची के हवाले से, कराची के लोगों ने बहुत लाइक किया, खासतौर पे यंग जनरेशन ने। इसने देखिए, पीटीआई तो आई भी ना, उसने कराची के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए, इमरान खान साहब एक दफ़ा आए, 20 अरब रुपए का वादा करके गए, मैंने अगले दिन मीडिया पे कहा कि ये बंदा आई वॉश कर रहा है, ठीक है। इमरान खान साहब खुद बाइस्ड हैं कराची के मामले ख़ास तौर पे, ये आपको आप बता दूं मैं आपको पूरे मीडिया के सामने, और आप ये देख लीजिएगा, आगे भी देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। हिंदी रेंजर्स ये को एक पावर्स दिया है तबीयत तो होती समझ है, पुलिस ये एक ज़िद्दी और अखड़ मिजाज किस्म के आदमी हैं। समा दी अदर ठीक है, उनको जिन्होंने बेचारे उठा के तो बिठाया तो उनके साथ आज ये बदतमीजियाँ कर रहे हैं। तो ये अखड़ मिजाज और ये सेल्फ बायस्ड और ये इस तरह का आदमी नहीं चल सकता। पाकिस्तान की सियासत में बदलना चलेगा। पहले तो दीनदार हो, खुदा खौफी वाला हो, और उसके बाद फ्लैक्सिबल हो। वो हर किसी के साथ जाके मिले। मुझे पता है किसके दरवाजे पे जाना है, मुझे पता है किससे मिलना है, मुझे पता है किससे बात करनी है। मैं जाऊँगा पहले, मैं रोड पर खड़ा हूँ, मैं रोड पर बैठता हूँ, ये मेरा कंटेनर है, मैं यही रहता हूँ, यही मेरा घर है, मुझे कोई बनी गाला नहीं है। जरा बनी गाला को ऊपर से देखें तो सही, जातियों में को जाके ऊपर से देखें तो सही, बिलावल हाउस को देखें तो सही है, ये आवाम लड़ रही होती है आपस के अंदर, ठीक है, और हमारे गले पकड़ रही होती है, और मैं उनको कहता हूँ कि जाके देखो जरा ऊपर से तस्वीर तो देखो जाके गूगल पे, किधर ये लोग रह रहे हैं और किन के लिए आप लड़ रहे हो यार। अच्छा, मैं कहता हूँ कि रेंजर्स को भी पावर्स मिले, पुलिस क्या, आप किस तरह देख रहे हैं पुलिस को? देखिए, रेंजर्स को अगर सही पावर मिल जाए ना, तो ये कराची आपका जो है ना थोड़े अरसे के अंदर टोक्यो बना देंगे ये, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़र में कोई ठीक पावर है, नहीं मिला? देखिए उस तरह की पावर नहीं मिली है। फिर इसके अंदर भी वही आ जाता है, इतने माफियाज हैं, ठीक है, तो उसके वजह से आपको कंटेन रहना पड़ता है। आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर रेंजर्स करती है, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ गेहूं को पीसते हैं तो घुन भी पिस जाता है, आपको 2 मिनट में उठा के तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। आप देखें, यही तो बातें होती हैं। फिर वहाँ जाके बात करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, नहीं तो इसका तो उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस हुआ। सकीना, आप क्या कहती है कि इजलासों के अंदर जिस तरीके से शेख साहब बिल्कुल जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं एग्री हूँ उसकी सब चीज़ें, सब सोचता तो सब कुछ है, लेकिन कहाँ लेके जाएं फरियाद को, कहाँ लेके जाएं इस बात को, किस तरह अपने दिल को समझाएं कि शायद बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अगर हम इजलासों की कार्रवाई देखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे ये इजलास ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर भी कोई कहने वाला नहीं। हालांकि सब चीज़ों की निशानदेही करने की भी कोशिश की जाती है कि ऐसा है, गंदम के हवाले से बात आ रही है, फलां के हवाले से बात आ रही है, हम सब सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। देखिए, जहाँ तक मैं यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो जहाँ तक ये बात है कि हुकूमत क्या क्या करेगी, कुछ अवाम की भी जिम्मेदारी है। हम हर मलबा जो है अवाम गलत करके सब हुकूमत को नहीं डाल सकती, कुछ अवाम में भी होना चाहिए या जज्बा होना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा एक मशवरा है, अगर सुना जा सके तो, एक यूथ की कोई एक टीम अप की जाए हुकूमत की तरफ से। यूथ के पास आइडियाज़ हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं, उनके पास फाइनेंशली स्टेबल नहीं है वो लोग कि वो कुछ कर सके। तो यूथ को चाहिए कि इस कौम की बागदौड़ या जो भी प्लानिंग हो, एरिया वाइज आप दे दें किसी किसी को। जिस तरह हमारे ये सियासत, मुझे इतना आइडिया नहीं है सियासत में क्या ऐसे होता है, मगर वो सियासी तौर पे जो है उनको इतना वो कर दें, वो सियासत से दूर हैं मगर चीज़ों को लाइन अप करें, अपने एरिया की जिम्मेदारी किसी किसी को दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है सकीना, बहुत शुक्रिया। शेख नदीम साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम को देखा और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसी हकीकताना बात आपसे कर सकें कि जिसके अंदर वाकई सच्चाई है, और जैसे सकीना कह रही है कि यूथ के हवाले से लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तमाम लोगों का अपने अपने हिस्से का काम करना है। जो बड़े लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो एक आइडियाज़ लेकर सामने आए। इसी तरह रिटायर्ड्स की बात की गई, वो लोग अपने आइडियाज़ लेकर आए
اور یوتھ کو بھی آگے بڑھ کے آنا چاہیے. ہر شخص اپنے اپنے حوالے سے اپنے اس ملک کے لیے کام کرے, کچھ آئیڈیا جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے کہ ہم ایک دوسرے کی بس کھچاؤ, لڑائی اور یہ وہ, اس سے ہٹ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم اپنے پاکستان کو بنانے کی بات کریں, پاکستان کو نکھارنے کی بات کریں, پاکستان کا سولوشن نکالے کہ کس طریقے سے اس میں سلجھاؤ آ سکتا ہے, کس طریقے سے اس میں بہتری آ سکتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس ویو کی طرف جا سکتے ہیں. ہم ماضی کو بھول کے حال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی فکر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایک بہترین پاکستان انشاءاللہ کئی دنوں میں نہیں بلکہ بہت سارے دنوں میں نہیں بلکہ کم سے کم دنوں کے اندر ایک بہترین پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اور ہم مایوس نہیں ہیں اللہ کی ذات سے کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار پر وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.